Hello connections. I hope you are doing well. In this video, we will learn about how to configure overlapping subnet. We have both sides same subnet. You can see here we have both sides some subnet 192.168.1.0/24. Both overlapping subnet. How to configure with net. We will achieve these things this connectivity with the help of net and security policy. We require two types of net, DNet and SourceNet. On each firewall, we will configure two nets for the proper connectivity. In this sheet, we can see we have two type of LAN, A LAN and B LAN with the overlapping subnet. Okay, and also we have WAN with public IPs 10, 29.10 and 29.101. Okay, we follow the some steps I have mentioned below. I create IK crypto and IPC crypto profiles. Then second, I we create IK gateway both side. तो दिस इज अ बेसिक कॉन्फ़िगरेशन हम पहले भी ऐसे करते थे. तो लेट्स मूव ऑन दी फायरवॉल एंड GUI मोड. तो दिस इज आवर Gurgaon firewall. Its IP having 192, oh, sorry, 130, 38. Okay, 29.138. It's a Gurgaon firewall. And 129 is Jaipur firewall. And here you can see IK crypto already configured. I'm using the default one actually. I'm not creating any specific. I'm using the default IK. Then IPC crypto, I use the default as well. And IK gateway. In IK gateway, I have configured Jaipur to Gurgaon as well as on the Gurgaon firewall, Jaipur to Gurgaon. I have configured the name and Ethernet outside Ethernet and the peer address which is 129.101. Okay, and preset key and local identity and peer identity. We will configure our public IPs for this segment. In advanced option, I have configured the auto and IK crypto profile. I choose as a default. Okay. Okay. Uh, Now moving to the Gurgaon firewall. Here IP I created IP IKE gateway which is named with the Gurgaon to Jaipur. Always Jaipur to Gurgaon. It is Gurgaon to Jaipur. Okay. This is our peer IP and sorry, this is our remote IP. Sorry, local IP and 100 is peer IP. And I configure the local and peer identifications. As well as in advanced option we have IK crypto profile is default. Now move on the Jaipur firewall and create IPsec profile, IPsec tunnel profile. Okay, here I put the name and just I need to change for the naming convention JPR IPsec profile. Okay, and I think I typed the wrong. Okay, good. Here I keep I choose the IK gateway which is already created in below and in past, and this is the main the section is the proxy ID. We need add हम वो proxy ID ऐड करेंगे जिस पे हम ट्रांसलेट कर रहे हैं. हम रियल ओवरलैपिंग सबनेट यूज नहीं करेंगे. जिस आईपी के साथ हम ट्रांसलेट कर रहे हैं, जिस सबनेट के साथ हम ट्रांसलेट करेंगे, हम वो एज ए proxy ID हम यहाँ पे यूज करेंगे. तो यहाँ पे लोकल रहेगा
10 डॉट 10.1.0 से जाएगा 10.20 पे, क्योंकि बहुत सारे ओवरलैपिंग है। तो हम जो है न्यू सबनेट्स के थ्रू हम कम्युनिकेट करवा रहे हैं यहाँ पे। तो ये हो गया 10 और बिलो हो गया 20, करेक्ट है। गुड़गांव साइड में चलेगा 20, जयपुर साइड में का हो रहेगा लोकल 10.1.0। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। अगर हम गुड़गांव वाले फायरवॉल पे चलता हूँ, तो यहाँ पे आईपीसेक प्रोफाइल मैंने सॉरी आईपीसेक टनल बना का नेमिंग कन्वर्सेशन कर लिया है। एंड यहाँ पे भी हमें प्रोक्सी आईडीज रखनी है। मैं पहले नाम चेंज करता हूँ फॉर बेटर बेटर अंडरस्टैंडिंग। नेम कन्वर्सेशन है, आप कुछ भी नेम कन्वर्सेशन है, इस पर मीनिंगफुल नेम दे सकते हो। और टनल इंटरफेस हमने 10 कर रखा विदाउट आईपी। आई विल शो यू विदाउट टनल आईपी विथ न्यू जोन, मतलब एक जोन हमने दिया है इसमें टनल गुड़गांव वीपीएन टनल करके दिया है विदाउट आईपी। ओके, ये आईपी गेटवे आ गया जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, यहाँ पे पीयर आईपीज हमने डाली थी। और प्रोक्सी आईडी पे चलते हैं, तो यहाँ पे जी जी टू जेपीआर प्रोक्सी आईडीज है। यहाँ का जो लोकल सबनेट रहेगा वो 10.20.1.0 रहेगा, और रिमोट रहेगा 10.10.1.0। ओके, नाउ ओके नाउ हम फायरवॉल जयपुर फायरवॉल पे आ गए। 129 वाला जो फायरवॉल है उस पे आ गए हैं, जो कि जयपुर फायरवॉल है। यहाँ पे हम टनल इंटरफेस की इंफॉर्मेशन, टनल जो इंटरफेस है उसकी इंफॉर्मेशन चेक करते हैं। तो हमने यहाँ पे न्यूमेरिक नंबर दिया है जो आप देते ही एज यूजुअल वर्चुअल ऑटो डिफॉल्ट है। और ये गेटवे लिया है टनल जेपीआर टू जीजीएन, ठीक है, विदाउट आईपी के। सेम हमने गुड़गांव वाले पे भी कॉन्फ़िगर किया है, गुड़गांव टू जयपुर के नाम से किया टनल गुड़गांव टू जयपुर, और ये है टनल जेपीआर टू गुड़गांव। ओके, नाउ हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप। ये हमारा इंटरफेस का डिटेल्स हो गए, जो आउटसाइड में क्या है और इनसाइड में हमारा ओवरलैपिंग सबनेट चल रहा है बोथ साइड। यू कैन सी हेयर आई क्लियरली मेंशन्ड है। ये लैन हो गया, ये वैन हो गया। ओके, नाउ मूविंग टू द राउटिंग पार्ट। तो राउटिंग में हमें टू टाइप्स की राउटिंग चाहिए होगी, एक तो टनल के लिए और एक लोकल के लिए चाहिए होगा। डिफ़ॉल्ट राउट को अभी आप इन रियल सीनरी में आप कॉन्फ़िगर करते ही हो, तो एज मैंने कर दिया। बट जो टनल के रिगार्डिंग जो है हमने ये टनल राउट दिया है, जो कि 10.21.0/24 के लिए जाएगा टनल 0 से। और ये हमने लोकल राउट दिया है, क्योंकि लोकल राउट के बारे में फायर को पता नहीं है। तो हम इंटरफेस 1/2 के लिए लोकल राउट दिया है 10.10 के लिए। सेम लाइक हमने गुड़गांव वाले फायरवॉल पे भी किया है, जीजीएन फायरवॉल पे भी किया है। तो यहाँ पे ये टनल राउट दिया है जो कि टूवर्ड्स जयपुर के लिए जाएगा, क्योंकि जयपुर का प्रोक्सी आईडी के रिगार्डिंग हमने टनल कॉन्फ़िगर किया है। ये प्रोक्सी आईडीज है जो हमारा डेस्टिनेशन वो है, नेटवर्क है। और यहाँ पे भी हमने लोकल कॉन्फ़िगर किया है जो कि टूवर्ड्स इनसाइड द 1/2 इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर है, क्योंकि फायरवॉल को हमें बताना पड़ेगा कि इनसाइड में वो क्या कनेक्टेड है। तो हम इसको ओपन करता हूँ। ये 10.20/1.0/24 है, जो इथरनेट 1/2 पे कॉन्फ़िगर है। तो हमने फायरवॉल बता दिया कि ये इनसाइड में होगा
नेटवर्क रहेगा, तो ताकि फायरवॉल के बारे में इन्फॉर्मेशन हो। तो हमने ये सब चीज़ें कॉन्फ़िगर कर ली है। यहाँ तक ये आईकेई क्रिप्टो, आईपीसेक क्रिप्टो प्रोफाइल हो गया। बहुत सारे गेटवे हमने कॉन्फ़िगर कर लिया, इंटरनल इंटरफेस कर लिया, सिक्योरिटी ज़ोन कर लिया, विथ हमारी न्यू सिक्योरिटी ज़ोन कर लिया। नाउ आईपीसेक टनल क्रिएट कर ली, जो हमने प्रॉक्सी आईडी के साथ में मैंने आपको बताया था, वो हो गया। वर्चुअल राउटर भी हमने कॉन्फ़िगर कर लिया है, राउटिंग भी हमने लाइक लाइक राउटिंग कर। अब हम चलते हैं नेट पार्ट पे। ओके, तो हम ये गुड़गांव वाले फायरवॉल पे हैं, हमें जयपुर पे चलते हैं। ठीक है, जयपुर में आ गया है, 129 जयपुर वाला है, 129 पे आ गया मैं। नेट में आता हूँ। अब नेट में जो हम सबसे पहले जो कॉन्फ़िगर करेंगे, हम करेंगे सोर्स नेट। बिकॉज हमारा जो सोर्स रहेगा वो जयपुर जयपुर का नेटवर्क रहेगा, और जो डेस्टिनेशन रहेगा वो हमारा रहेगा गुड़गांव गुड़गांव वाला। तो हमें सोर्स नेट जयपुर के लिए कॉन्फ़िगर करना होगा, और डी नेट गुड़गांव के लिए कॉन्फ़िगर करना होगा। तो यहाँ पे हम सोर्स लेते हैं लैन, और आउटसाइड डेस्टिनेशन लेते हैं टनल, क्योंकि टनल के थ्रू जाएगा बाहर। तो सोर्स लेंगे 192.168.1.0/24 लेंगे, एंड डेस्टिनेशन लेंगे 10.20.1.0, बिकॉज हम डेस्टिनेशन हम इसी में ट्रांसलेट कर रहे हैं, 10.20.1/0। नाउ ट्रांसलेट कर रहे हैं हम सोर्स को, हम 10 में ट्रांसलेट कर रहे हैं, 10.10 में। तो हम सोर्स पार्ट में ही इस जो ओवरलैपिंग जो सबनेट है उसको हम ट्रांसलेट करेंगे एज ए स्टैटिक लेकर के 10.10.1.0/24 में ट्रांसलेट करेंगे। करेक्ट है? ओके किया। ये इस फायरवॉल पे काम हो गया। नाउ नेट पॉलिसी, सॉरी, सिक्योरिटी पॉलिसी कॉन्फ़िगर करते हैं। नेट पॉलिसी हमारी हो गई है, सिक्योरिटी पॉलिसी में चलते हैं। यहाँ पे हम आउटबाउंड, क्योंकि इनसाइड से हम आउटसाइड में जा रहे हैं, तो आउटबाउंड वीपीएन ट्रैफिक हम पॉलिसी बनाएंगे। आउट ओके, नेमिंग कन्वर्सेशन कुछ भी हो सकता है, आप एज पर योर रिक्वायरमेंट्स फॉर वीपीएन। ओके, लैन इसमें सोर्स रहेगा लैन, क्योंकि लैन के थ्रू जा रहा है। 192.168 इसका सोर्स रहेगा। ये 192.168 जीरो वन 1/0/24। सॉरी। अब हम डेस्टिनेशन में जाते हैं। डेस्टिनेशन हमारा वीपीएन इंटरफेस वीपीएन रहेगा, टनल इंटरफेस, सॉरी, टनल का इंटरफेस रहेगा। और यहाँ पे 10.20.1.0, क्योंकि इसमें कन्वर्ट हो रहा है, कन्वर्ट हो जाएगा। तो पोस्टनेट एक एक काम करता है पॉलिसी के अंदर, प्रीनेट आईपी पोस्टनेट जॉन। तो ये प्रीनेट आईपी हमारा ये होगा, प्रीनेट जो आईपी के नेट के पहले जो आईपी है, पोस्टनेट जोन होगा जो नोड जो आईपी हमारी ट्रांसलेट होगी। ओके, हम अब चलते हैं गुड़गांव वाले फायरवॉल पे। हमारा नेट हो गया है, 1 सेकेंड, हमारा नेट हो गया है एंड ये हमारा एड्रेस ट्रांसलेट होगा। अब हम चलते हैं गुड़गांव फायरवॉल पे, और इस पे चलते हैं, करते हैं डी नेट, क्योंकि वहां से सोर्स जो कन्वर्ट होकर के आएगा, इस फायरवॉल पे पता होना चाहिए ना कि क्या सोर्स आ रहा है और वो किस में कन्वर्ट होकर के आ रहा है। उसकी हम इन्फॉर्मेशन देंगे। तो ये वीपीएन और टनल इंटरफेस से आएगा लेन के लिए। अब टनल से क्या आएगा, 10.10.1.0/24 आएगा, और ये कन्वर्ट किस में होगा, 10.20.1/0/24 में होगा। और ये इसका जो, अब हम डेस्टिनेशन आईपी को कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डेस्टिनेशन आईपी 20 है, अब उसको हम 192.168 लोकल गुड़गांव में चल रहा है,